want to lose some money. We want love. तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता था उनका। Shut up. You shut up. तुम हद से बाहर जा रहे हो राज। दिल फट चुका है मेरा। दिल फट चुका है मेरा। बोलने दो मुझे ललित। Every film actually is an experience, but I think working in this film has got to be an experience that I think will last with me for as long as I live. Because it's obviously, you know, working in a Subhash Ghai film should be a cherished memory for anybody, but for me especially because I have seen myself grow as an actor with him. I have learned so much from him. It's not funny. I thought I was an actor, but you know, he made me realize that there's more to acting than what I had thought. Technically is a very mild word. He is, I mean, in one simple sentence I could say that there was a showman, my grandfather. I'm very proud to be his grandchild, Mr. Raj Kapoor. And I think today there is nobody who could be compared to him except for a Subhash Ghai. He is a complete showman. He's an institute where you could learn acting. You could learn not only about being a part of this industry, but you could learn about a lot about life. I've learned so much from him just as being a human being. So many parts of me, so many parts of my strength, a part of me, my strength, my beliefs are a lot. I mean, I would be grateful to Mr. Ghai for it. Kareena is definitely going to be a legendary actress, and Hrithik is one of the most handsomest and most talented lot, the talented boy that I have seen. I worked with a lot of them. This boy has got loads in him, and especially in this film, he's turned out so beautiful that I haven't seen the same kind of spark in even Mission Kashmir. He looks devastating. He's performed fantastic. The songs that I've seen of his is something which I think will go down with the people who watch it really well.
from Mukhtar to start with. So my foundation is here. So I feel he knows my pulse. It's going to be a beautiful memory, I feel, throughout. For me, maybe after I pass off, I die. For people, memory, you know, it's something I know. जब मैं मरूंगा तो ये गाने में बजेंगे. It's that kind of thing, you know. वो होता है ना जब any actors die, so they उनकी पिक्चरों के कुछ गाने वगैरह बजते हैं. तो मुझे लगता है ये मेरा उन गानों में से जो I think even when I'm not there, it'll be hummed and it'll be remembered. ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए. यादें Train means to me, it's an experience of a lifetime. And I always say this line, which, you know, I believe that what is man but memories? And that's what it's about. It's about memories that help you live on with the many vacuums that are created in life from time to time. They give you strength. They motivate you, they inspire you. And that's what the film is about. It's about inspiring people, it's about motivating people, it's about loving, it's about friendship, it's about tradition. It's about a lot of things. But to me, Yaadein is an experience of a lifetime. It's a memory that I will cherish forever. चम 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 चमकती शाम है. चल 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 छलकता जाम है. जिंदगी प्यार का दूसरा नाम है, दिल का पैगाम है. ओ बेबी छलकती चूड़ियां गल 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 गल्ला गुड़ियां. More filmmaking than, you know, it's not just work. It's a fantasy. It's a dream, and that's how he made the film. You know, it's just moments that were created on the sets, and you know, all the people that were working in the film, the relationships, the bonds that we have created is really truly special. And you know, I have such amazing memories of this film. I mean, I can see myself 20 years down the line, you know, looking back at Yaadein, you know, and I can imagine myself having a smile on my face and, you know, really enjoying those memories. And I'm sure that when, you know, people see the film, they definitely go back with truly great memories themselves. I'm just coming, beta. I love you, beta. एक खबर सुनानी है, एक बात बतानी है, एक खबर सुनानी है, एक बात बतानी है. पर सबसे बड़ी खबर तो हमें सुनानी है. हाँ, हमें सुनानी है. अंकल राज पहले हम. अंकल राज. अंकल राज 3 बार हो गए. Overruled. I defy Uncle Raj. Remember, you defy. Who's the father? Who's the friend? Both. Both the friends, right? I'm senior. You junior. Go ahead. So Yaadein to me is just always going to be close to my life, forever and ever, I think, till my last breath. So the music is, it's like, if people found Taal mind-blowing, I think Yaadein is just going to go 1,000 folds better than that. खुशियाँ थोड़े गम ये हमसे इनसे हम यादें
भूल जाते हैं यादें याद आती हैं It's a story about all being in love with the family, adding an element of friendship. That we should not, though we are relatives, we are father and daughter, we are brother and sisters or mother, but still there is a distance between us. That's what I feel mostly NRI people in America or UK. I find them that they are still formal to each other, which they call them respect. You see, in terms of respect, they use it, but I could see that they are not really great friends. So what Yaadein tells you is that you have to be a great friend to your grown-up children and ask them to participate in your problems as a great friend. And if you bring an element of friendship in your family, you are bound to have a happy family. नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, हा हा हा, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, यादें Yaadein has been a roller coaster actually, because first it is a dream come true. Now when I say a dream come true, many people say that when you work with Subhash Ghai. Have you noticed that, whether it's Hrithik or Kareena? I've heard a lot of other people saying the same thing. So I think we all fall in the same category of people who have desired to work with Subhash Ghai. Now why? First of all, I'll speak from my point of view. As a composer, I feel he knows a lot of music. You know, it's a dream for a composer to work with a director who knows what he wants. Now, the best part of Subhashji is that he, throughout the making of Yaadein, he was dead sure of what he wanted. I can even give you examples. For example, there's a song called Eli Re Eli. You know, while I was recording this song, I mean, much before I was recording this song, when I was composing this number, he gave me a situation saying, just imagine, Anu, there are 3 sisters, 3 girls, their parents are away. It's early morning and they come to know they're alone for the first time in their lives. How would they get up? Whereas Yaadein, what it means to me as Kareena is a cherished dream come true. Like I said, there could never be anything that could be so good that could have happened to me apart from Yaadein. Working with Mrs. Subhash Ghai is, I mean, there's nothing more I could ever ask for in my life. So, one day when I'm sitting with my children, probably at the age of 50, I would narrate the shooting experiences, the lessons, the advice, the kind of beliefs that Mr. Subhash Ghai has instilled in me. I would be narrating and teaching to my children. And through this making of this film, through Yaadein, it has not only made me a greater actress, if I may say so,
but a much, much more greater and a happier human being. So there's nothing more that I could say, but just, I'm sure Yadein, the film, would make everybody walk out in the theatre, learn to cherish fond memories in their life forever and ever. कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। अपनी भी कभी पहली मुलाकात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। It's a family film, it's a love story, great love story, and I must say that all my actors, Jackie, Hrithik, Kareena, they have done wonderful job, excellent job, and I must say that I'm proud of them. And equally, when you see the movie, you will be also proud of them. You always want to work with the quality people. Like my dream is also to work with the quality people, whether it's a cameraman, whether it's a writer, whether it's all thing. Because you know that with quality people, when you work, they will present you in such a way that you look more than larger than life, more than what you are. So that is why all these young actors feel like to work with good directors, or good films, or good banners. So I can appreciate their dream. And I also appreciate when they work with me, they are really great students, I would say. And I treat them like my own students, and I teach them on every step where they are wrong, where they're right, and what they should do in normal course. So Muktart has been training and grooming many stars all these years. And I'm very interested in teaching my actors that how they should evolve and grow as an actor. And I'm very glad that both these Hrithik and Kareena have been a very good student. That is why you can see a great performance in Yadein.
He was love. तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता था उनका। Shut up. You shut up. तुम हद से बाहर जा रहे हो राज। दिल फट चुका है मेरा। दिल फट चुका है मेरा। बोलने दो मुझे लालित। मेरे ख्याल में असली डायरेक्टर वो होता है जो तरह तरह की फिल्में बनाता है। वो डायरेक्टर नहीं जो कि एक फिल्म हिट बना दी और उसके बाद वो 10 फिल्में उस तरह की ही बनानी शुरू कर दे। इसीलिए एक आर्टिस्ट जो डायरेक्टर में होता है वो चाहता है कि हर बार मैं एक फिल्म ऐसी बनाऊं जो मेरी पिछली फिल्म से ना मिले, या जो फिल्में मैंने बनाई हैं वैसी ना मिले। इसलिए आप देखेंगे कि कालीचरण, कर्मा, खलनायक, सौदागर, ये एक क्राइम, एक्शन और एपिकल मूवीज़ थी। उसके बाद फिर परदेश, मैंने एक कल्चरल फिल्म, सोशल फिल्म बनाई, फिर एक म्यूजिकल ताल बनाई, और इसके बाद मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी की बात थी कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो रियल सोशल फैमिली एंटरटेनर हो, और जिसमें एक सोशल मैसेज भी हो, जो कि आज की प्रॉब्लम है माँ बाप की और बच्चों के बीच में, तो एक सोशल मैसेज भी हो और एंटरटेनर भी हो। एंड मैंने जब आर्टिस्टों को साइन किया और टेक्नीशियंस को साइन किया, तो सबसे पहले मैं उनसे कहा कि मैं एक रियल फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ये धूम धड़ाके वाली फिल्म नहीं है, ये बड़े ग्लैमर वाली फिल्म नहीं है। हो सकता है लोग इसे ये कहेंगे ये सुभाष घई की फिल्म ही नहीं है, क्योंकि सुभाष घई की इमेज जो है कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने इतना एक्सपेक्ट कर लिया। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी भी ग्रोथ हो एज ए फिल्म मेकर। हम कुछ ऐसी चीज़ें देके जाएं अपने बच्चों को कि कुछ उनको मैसेज, उनकी थीम और कुछ चीज़ें भी उन्हें मिले। बच्चे जब 16 साल के हो जाते हैं ना, तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए। आज के बाद चारों दोस्त मिलकर एक वादा करते हैं, एक संगठित फ्रेंडली परिवार बनकर जिएंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस पापा। और हर बार मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि कोई भी फिल्म मेरी पिछली फिल्म से न मिले, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट फिल्म मैं फिल्म क्राइम एक्शन बनाऊँ, हो सकता है कि कल फिल्म में बड़ी भव्य इंटरनेशनल लेवल पर बनाऊँ। तो जब भी ऑडियंस फिल्म को देखे तो वो फिल्म को पहले देखे, परफॉर्मर को नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप परफॉर्मेंस देखिए और परफॉर्मर को मत देखिए, कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। अगर वो गलत है तो आप कह सकते हैं कि वो गलत है, लेकिन अगर आप परफॉर्मर के ऊपर चढ़ जाएंगे कि जैसे उसने ज़िंदगी में कभी अच्छा काम किया ही नहीं, तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़े गम, ये हमसे, इनसे हम, यादें, वो मीठी मीठी यादें, खट्टी मीठी यादें। इस फिल्म में जो 2 चीज़ें हमारे खिलाफ गई शुरू में, वो थी एक एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो समझ रहे थे कि सुभाष की बहुत भव्य फिल्म और ऋतिक और करीना जो हैं इनके कॉम्बिनेशन में कोई एक्शन फिल्म होगी, कहो ना प्यार से बड़ी फिल्म होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो इमोशनल फिल्म है, एक 3 बेटियों की, एक बाप की और एक लड़के की। तो कहा थोड़ा शुरू में उनको थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन जब कहानी समझ में आई और जब उसकी भावनाएँ समझ में आई तो अब उनको अच्छी लगने लगी। दूसरी बात इसके खिलाफ कि मीडिया भी इसको ले ना सका, क्योंकि मीडिया भी जनता की तरह ही है, कि जैसे जनता उसको महसूस किया उन्होंने भी यही एक्सपेक्ट किया। और मुझे ये मालूम था कि ये पहले हफ्ते इसका बहुत शोर शराबा होने वाला है और दूसरे तीसरे हफ्ते इस फिल्म को आस्ता आस्ता इसका स्वागत पब्लिक करने लगेगी। यादें की कहानी की इंस्पिरेशन जो मुझे मिली वो मुझे एक संस्कृत के श्लोक से मिली, जिस श्लोक में ये लिखा था कि लालियेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियेत षोडशे वर्षे प्राप्त मित्रवदाचरित। यानी कि बच्चे का लालन पालन 5 साल तक कीजिए, 10 साल तक उसको निगरानी रखिए और 16 साल के बाद उसको अपना मित्र बना लीजिए। यही उस फिल्म में जो राज सिंह पुरी हैं उनकी बीवी उन्हें कहती हैं। ये थीम मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरा थीम जो यादें का मुझे पसंद आया कि एक लड़की
यह ना समझे कि जिससे वो प्यार करती है बस वहाँ से जीवन उसका अंत हो गया। वहाँ से उसके जीवन की कहानी शुरू होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी शादी सुकांत से होनी है या उसके परिवार से। यही तो मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शादी के बाद तुम्हारा नाम ना महबूबा होगा ना मिसेस सुकांत। शादी के बाद ससुराल में लड़की को कई नाम दिए जाते हैं बेटा, बहू, मामी, काकी, चाची, और वो सब रिश्ते तुम्हें निभाने होंगे। यादें फिल्म सिर्फ ऋतिक रोशन या करीना कपूर या जैकी श्रॉफ की नहीं, यादें फिल्म एक परिवार की फिल्म है, एक सामूहिक फिल्म है। ये एक परिवार की फिल्म है जिसमें ये लोग पार्ट हैं, और इस परिवार में जो कि एक परिवार एक दूसरे के लिए प्यार करता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहता है और एक मित्रता उसमें कायम करना चाहता है, जिसकी कमी हम तकरीबन दुनिया में और फैमिलीज़ में और ख़ासकर इंडियन फैमिलीज़ में देखते हैं। मैं आज तक वो इमोशनल मोमेंट नहीं भूल सकता। जब मैं लंदन से आ रहा था, यूके में ये बहुत बड़ी पिक्चर हिट हुई, तो लंदन में किसी लेडीज़ ने, एक लेडी आई, उन्होंने कहा, सुभाष घई साहब, मैंने कल आपकी फिल्म यादें देखी और मैं बहुत इमोशनल हूँ। और उसने मुझे गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बोला क्यों? कहने लगे, देखो आपकी फ़िल्म ने मेरे पति को इतना बदल दिया है, ये मेरे हस्बैंड हैं, और इन्होंने फिल्म देखने के बाद आज मुझे कह रहे थे कि आज के बाद मैं अपने बच्चों से अलग तरीके से बात करूँगा। हमारी भी 3 बेटियाँ हैं और तीनों बेटियों के साथ आज के बाद ये मित्रता रखेंगे। आपने तो हमारे घर का ढांचा ही बदल दिया है, और मुझे पहली बार मेरे हस्बैंड ने इस तरह से बात की। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ही चीज़ें जो हैं हमको लगता है कि हमारी सफलता है कि हमने कुछ छोटा सा योगदान किया है अपने समाज की तरफ। यादें फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो है राज सिंह पुरी। राज सिंह पुरी जो लंदन में 25 साल पहले एक बीवी से, अपनी बीवी से शादी की और 3 बेटियां उसकी हुईं, और 3 बेटियां जब बड़ी हुईं तो एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी चल बसी। राज सिंह पुरी जो आज तक हमेशा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था लेकिन बेटियों से कभी बात ना कर सका, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि सडनली उसने देखा कि 3 बेटियां सामने आ गई हैं और अपनी बीवी से एक वादा कर चुका है कि ये वादा मुझे अब निभाना है कि मैं अपनी बेटियों से मित्रता करूं। राज सिंह अपने दोस्त के बेटे रोनित से उसकी दोस्ती थी, उसको वो अपना दोस्त समझ सकता था, जैसे कि हमारा हर भारतीय बेटे से दोस्ती जल्दी करता है, बेटियों से नहीं करता। तो यही प्रॉब्लम राज सिंह पुरी के सामने थी, और एक मिशन था कि मैं अपनी बीवी को दिया हुआ वादा पूरा करूं और इन तीनों बेटियों को खुशी खुशी में विदा करूं। तीनों की शादियां करता है, और 3 बेटियों की शादियों में एक अरेंज मैरिज होती है, एक ब्रोकन मैरिज और एक लव मैरिज। ये 3 अध्याय से गुजरता है राज सिंह पुरी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी, अपनी भी कभी पहली मुलाकात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी। मैं एक नए किस्म का फादर का कॉन्सेप्ट लाना चाहता था, इसीलिए राज सिंह पुरी की कास्टिंग के लिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसको कास्ट करें, कि जो बेटियों 3 जवान बेटियों के साथ मित्रता रखता है, जिनके साथ वो गेम्स भी खेल सकता है, जिनके साथ खाना बना सकता है, जिनके साथ बगीचे में जा सकता है, जिनके साथ अक्रॉस द टेबल बात कर सकता है। उसके लिए भी हमारे पास एक ही एक्टर की चॉइस थी, और उस एक्टर का नाम था जैकी श्रॉफ। एंड आई मस्ट से कि उसने अपने रोल को बड़ी इमोशंस, बड़े प्यार से और हर सीन को बड़ी गहराई से जमाया। राज, 1 मिनट ललित। एक बात ध्यान से सुनो जगदीश मल्होत्रा, ईशा और रोनित एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार, लेकिन उन्होंने बड़ों की इज्जत करना सीखा है। उसे इज्जत के खातिर, मेरी खातिर उन्होंने अपने प्यार की कब्र बना डाली, सुखा दिए अपने आंसुओं को। ऋतिक रोशन ने और रोनित के कैरेक्टर को बड़े अच्छे से समझा, और उसको ये रिलेशनशिप बहुत पसंद आया कि मेरे अंकल राज अंकल नहीं, वो हमेशा अंकल राज बोलता है, और वो हमेशा एक फ्रेंड्स रहते हैं।
एक दोस्त एक नए किस्म का रिश्ता मैं देखा कि जो दोस्त के बेटे के साथ दोस्ती रख के वो अपने दुख सुख शेयर करते हैं। एक खबर सुनानी है, एक बात बतानी है, एक खबर सुनानी है, एक बात बतानी है। पर सबसे बड़ी खबर तो हमें सुनानी है। हाँ, हमें सुनानी है। अंकल राज पहले हम। अंकल राज पहले हम। अंकल राज 3 बार हो गए overruled. I defy Uncle Raj. You defy. Who's the father? Who's the friend? Both the friends, right? कोई भी स्टार हम नहीं चाहते जो कि कैरेक्टर से बड़ा हो, कैरेक्टर स्टार से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस फिल्म यादें में क्या हुआ कि हमें न्यू कमर की तलाश थी या कोई राइजिंग स्टार जो नया स्टार बना हो। तब उस वक्त हमारे इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरी मुलाकात राकेश रोशन जी से हुई और उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई रिलीज से पहले और मुझे ऋतिक पसंद आया। मुझे लगा कि ये प्रॉमिसिंग अपकमिंग एक्टर है और मैंने उसे कहानी सुनाई और ये रोल दिया। ठीक है तो है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब मैं वही करूंगा जो वो चाहेगी। लेकिन हमें एक्टर को एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि जस्ट क्योंकि उसकी वेव, उसका क्रेज सुपरस्टारडम हो गया है। तो जैकी श्रॉफ 20 साल से हैं, कभी उनकी फिल्में चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। तो आप जैकी श्रॉफ को तो एज एन एक्टर देख रहे हैं, तो ऋतिक रोशन को भी आप एज एन एक्टर देखिए कि एज एन एक्टर उसने कितना खूबसूरत परफॉर्म किया है। उसके क्लाइमेक्स की स्पीच हो या उसका डांस हो या उसके कॉमेडी सीन्स हो, जो कुछ भी उसका पार्ट दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन इंडिया एट द मोमेंट। ये कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है जो हमारे बड़े में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नफरत है हमें और नफरत रहेगी। नहीं चाहिए आपकी दौलत की किताब। वी वॉन्ट लव, सिर्फ प्यार चाहिए। पहली बेटी अवंतिका, दूसरी सानिया, तीसरी ईशा। इन तीनों का भी सिलेक्शन कास्टिंग करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था कि वो जैकी श्रॉफ यानी राज सिंह पुरी की तीनों बेटियां लगें और एक ही उम्र की लगें और जो उनकी नेचर है उनके हिसाब से उनके फेस हों। कि जो बड़ी बेटी होती है जैसे हमारे घरों में अवंतिका, तो अवंतिका बड़ी बेटियां ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, उनमें मदरली एलिमेंट ज़्यादा होता है। एक बीच की बेटी है सानिया जो कि थोड़ी सी अग्रेसिव है क्योंकि उसकी एजुकेशन लंदन में हुई, इसलिए वो लंदन के प्रभाव में ज़्यादा आई हुई है और यही एक परेशानी का कारण था राज सिंह पुरी के लिए। लेकिन जब तीनों बेटियां, जब छोटी बेटी जो कि पिता के साथ बहुत जुड़ी हुई है और पिता के दुख दर्द को समझती है, जब छोटी बेटी तीनों को संगठित करती है और चारों मिलकर एक संगठित परिवार बनने की कोशिश करते हैं, तब ये तीनों बेटियों का अलग अलग कैरेक्टराइजेशन जो है सामने आता है आपको। ओ देखो कोई तस्वीर नहीं, ये एक पैगाम है, किसी ने दूर से भेजा, तुम सबको सलाम है। बड़ी ही प्यारी सी सूरत, बड़ा प्यारा प्यारा नाम है, दिलों को मेल कराना अच्छे दोस्तों का काम है। और ईशा का चयन यानी ईशा की कास्टिंग भी हम लोगों ने करीना के लिए की, क्योंकि करीना का जो फेस है वो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की जितनी भी हीरोइंस हैं उनमें से सबसे अच्छा, खूबसूरत, पायस और इनोसेंट फेस करीना कपूर का है। करीना कपूर को हमने चुना उसके इनोसेंस फेस के लिए और उसकी एक बोल्डनेस के लिए। फेस इनोसेंट है लेकिन उसके अंदर एक शक्ति है, एक ताकत है। करीना जो ईशा का कैरेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो शुरू में वो एक बचपन जैसे स्कूल की बच्चियां होती हैं उस तरह का कैरेक्टर है। स्कूल की बच्ची से वो कॉलेज की लड़की बनती है, उससे वो महबूबा बनती है, महबूबा से वो एक जिम्मेदार बेटी बनती है, जिम्मेदार बेटी से वो एक औरत का रूप लेती है। तो उसकी ज़िंदगी में, ईशा की ज़िंदगी में 1 साल के अंदर ही 6 परिवर्तन आते हैं। हाँ बाबा, बस बस। इस घर की तरफ देखो, दिस इज रियलिटी। तुम्हारे पापा, मेरे पापा,
और फिर मनुष्का, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है वो। कहाँ वो हंसने खेलने वाली एक अग्रेसिव लड़की और कहाँ अंत में एक जिम्मेदार लड़की जो वो अपने पिता के साथ है। तो अच्छा है ना, मनुष्का रोनित के लिए बहुत अच्छी है। शी इज गुड फॉर रोनित, शी इज गुड फॉर रोनित। गुड और बैड आई रियली डोंट नो। पर मैं आपके साथ हूँ पापा, मम्मी की कसम, आपकी कसम। यहाँ तक कि अपने महबूब को भी छोड़ देती है और उसकी इज्जत, उसकी शक्ति की वजह से रोनित का पूरा खानदान उसको अपने आप को अर्पण कर देता है। ये कहानी थी हमारी। यादें का म्यूजिक भी शुरू में लोगों को ये लगा कि ये ताल जैसा नहीं है। उस जैसा क्यों हो, जब हर जगह हर बार कहानी हम अलग बनाते हैं। संगीत जो है वो कहानी से पैदा होता है, संगीत से कहानी पैदा नहीं होती है। हम कोई प्राइवेट एल्बम नहीं बनाते हैं। इस फिल्म में अन्नू मलिक साहब और आनंद बख्शी साहब ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरी कहानी की हर सिचुएशन को अगर आप अंतरे तक सुनेंगे या उसके म्यूज़िक तक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानी और दृश्य के मुताबिक बना है। चाहे वो एली रे एली गाना है, तो अगर लड़कियां शुरू में जब उठती हैं, उठ के फिर स्नान करती हैं, स्नान करके बाहर आती हैं और अपने पिता से मिलती हैं और विदाई तक वो गाना चलता है, तो उस कहानी में आप देखिए कि म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट और धुन का डेवलपमेंट और लिरिक्स का, इन सब का संगम होके एक गाना बनता है। चाहे वो उसके पिता का गाना है, जबकि राज सिंह पुरी गाना गाते हैं अपनी बेटी की, और किस तरह से वो इमोशनल हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए जो चली गई, कि आज अपनी बेटी की शादी में काश मेरी बीवी जिंदा होती तो आज कितना अच्छा होती वो आज तो ढोलक बजाती वो, होती वो आज तो ढोलक बजाती वो, मस्ती में झूमती बेटी को झूमती। तो हर गाना चाहे वो प्रेम प्रेमिका का बना हो, हर सिचुएशन के हिसाब से अन्नू मलिक साहब ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि टिप्स कंपनी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि इसका सेल जो है वो ताल की सेल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लोगों में काफ़ी प्रिय है और पूरे विश्व में ये प्रिय हो रहा है। चमकती शाम है, चल 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 चलकता जाम है, जिंदगी प्यार का दूसरा नाम है, दिल का पैगाम है, ओ बेबी। यादें फिल्म है उनके नाम, उन बेटियों के नाम जो अपने पापा से प्यार करती हैं, उन पापा के नाम जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उस महबूब के नाम जो कि अपनी महबूबा से प्यार करते हैं और उस महबूबा के नाम जो अपने महबूब से प्यार करते हैं। क्योंकि ये रिश्तों की कहानी है, ये एक परिवार की कहानी है, एक सामूहिक परिवार की कहानी है, ए फैमिली इन लव की कहानी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई टेक्नीशियंस। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी टेक्नीशियंस का जिन्होंने पूरी मेहनत से मेरा साथ दिया इस फिल्म की कहानी को बताने के लिए, क्योंकि सबको मालूम था कि यादें एक अलग तरह की फिल्म है। ये वैसी फिल्म नहीं जो कि सुभाष घई की फिल्मों में की जाती है, और मैं कभी चाहता भी नहीं कि हर फिल्म जो है वो लोग प्रिडिक्ट कर सकें। अगर मैं वैसी फिल्म बनाता तो लोग बोलते हैं ये फिल्में तो हम आपकी देख चुके हैं, ये तो वही सुभाष घई की फिल्म लगती है, तो नयापन क्या है? तो नयापन लाने का ही ये प्रयत्न है यादें, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे उस कहानी के नरेशन के रूप में हो, चाहे वो कैरेक्टर्स के रूप में है। एंड आई एम श्योर द मोर यू सी इट मोर यू विल लाइक इट। अगर आपने एक बार देखी है तो आप दोबारा देखिए तो आपको फिल्म ये ज़्यादा और अच्छी लगेगी,
क्योंकि इसमें दिल है, इसमें रिश्ता है, इसमें दर्द है, इसमें भावना है। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना, यादें यादें यादें। थैंक यू। मैं जानता हूं कि फिल्म के पहले हफ्ते में भारत में ये फिल्म कई हिस्सों में नकारी गई, मीडिया ने और कुछ लोगों ने, लेकिन मुझे खुशी है जो समाचार मुझे मिले कि पूरे विश्व में यूके यूएसए में इसने सबके रिकॉर्ड तोड़े यादें ने। और मुझे खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता अब भारत में भी शहरों में और लोगों ने इस फिल्म में आना शुरू किया और इस फिल्म को पहचानना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने इसकी कहानी को समझने की कोशिश की। और मुझे खुशी है कि इस तरह के सब्जेक्ट और इस तरह के सोशल थीम लेकर जो फिल्में बनी, उनका अगर स्वागत होगा तो डेफिनेटली फिल्म विल बी मच बेटर टुमारो। और हम आपसे वादा करते हैं कि और भी अच्छी फिल्में आपको देंगे भविष्य में। And I could see it over and over again. It's excellent, excellent movie. I liked it very much, and I'll take my grandchildren with me next time. Parents are supposed to understand that girls can fall in love and get married to whoever they want. So yeah. Very touching. It's a very good movie. Brilliant music. But something different. It's absolutely true to life. I liked it after Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Hrithik was just excellent. Kareena she has given a very good performance. Jackie Shroff, he was ultimate. Yeah, I thought it was amazing. The acting, the directing, the dances, the songs, they were brilliant. It's a very mature film and the music is really good as well. It's reality based rather than an imagination. Yes, Hrithik is just cool. Yeah. Music is excellent. It's superb. I like the movie very much. Subhash, today you have shown, not only to India, to the world, that every frame that you have picturized is a reality of every home. I mean, I have a 1-year-old daughter, so I cried through the film.